نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عید قربان پر شدید گرمی، ملتان کے شہریوں نے لسی کو گرمی کا توڑ قرار دے دیا۔ گھنٹہ گھر پر لسی فروخت کرنے والے ٹھیلوں پر رش بڑھ گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں مہر عمران سے۔ آپ بالکل بات کریں گے عید الاضحیٰ پر جو ہے ان 3 دنوں میں جو گوشت کھانے والے حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت سے جو گوشت کھا کر گرمی جو ہو جاتی ہے اور گیسٹرو اور دیگر امراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان گوشت کھانے کے بعد کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اس گرمی سے کس طرح سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، تو لسی جو ہے وہ ایک اچھی چیز سمجھی جا رہی ہے۔ اور یہاں رش بھی ہم دیکھ رہے ہیں، میرا کیمرہ مین ہارون دکھائے تو گھنٹہ گھر پر موجود ہیں جہاں لسی کی دکان پر بہت جو شہری ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور لسی بھی پی رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ، لسی پینے آئے ہیں، گوشت کھانے کے بعد لسی ضروری ہوتی ہے؟ لسی ضرورت ہے، ایک تو مطلب کو ٹھنڈا کرتی ہے، دوسری سے نیند بھی آتی ہے، تو میں تو سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ گوشت کھانے کے بعد لسی ضرور پئیں۔ گوشت کھانے کے بعد لسی ضرور پیئیں۔ آپ لسی پی رہے ہیں، مزیدار ہے؟ جی لسی مزیدار ہے، آج عید کا دن ہے، گوشت کھائیں گے، لسی پیئیں گے، انجوائے کریں گے۔ لسی کتنا فائدہ؟ لسی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھتی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے بہت۔ کون سے جانور کا یہ دودھ سے بن رہی ہے اور دوسرا کتنے کا گلاس دے رہے ہیں؟ یہ 30 روپے کا گلاس دیتے ہیں، گائے کا دودھ ہو یا بھینس کا دودھ کی بنا لیتے ہیں، بھینس سے بنا لیتے ہیں۔ لسی پینے آئے ہیں، گوشت کے بعد لسی کتنی ضروری ہے؟ یہ لازمی چیز ہے، معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھی ہے۔ یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ ہے گائے کی خاص لسی ہے، خالص لسی ہے۔ جیسے شہری آئے ہوئے ہیں اور مجھے بھی یہ لسی جو ہے وہ دے رہے ہیں، میں بھی لسی پی رہا ہوں۔ مزیدار نمکین لسی ہے، گوشت کھائیں اور لسی پئیں اور اس طرح سے ٹھنڈک رہے گی اور پرسکون رہیں گے۔ عید کا دوسرا روز ملتان میں سیاسی ڈیرے آباد، لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ کی روحی سے گفتگو، ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کا دوسرا روز سیاسی ڈیرے مکمل طور پر آباد ہے، عید ملن کا سلسلہ بھی جاری ہے، خوش گپیاں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس وقت لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ اپنے ڈیرے پر کارکنان سے جو ہے وہ عید ملن کر رہے ہیں، بات بھی کریں گے۔ شاہ جی کیا کہیں گے، عید کے موقع پر عید خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ایک اسلامی دن ہے، اس بندے کو فیلنگ ہی عید خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور باقی عید میں سمجھتا ہوں سنت ابراہیمی تھی، عید بڑی عید تھی، تو اخلاص کے ساتھ عید منا رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ہی دوستوں کو کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ اسلامی نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں وہ عید کو اخلاق کے ساتھ منا رہے ہیں، اور خوشی تو اس میں قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا پیغام دیں گے جی آج عید کے موقع پہ؟ جی ماشاءاللہ بڑا خوشیوں کا لمحہ ہے، اور یہ وہ اپنا قربانی کی عید ہے، اور ماشاءاللہ عید الاضحیٰ جو ہے نا، ماشاءاللہ سارے دوستوں کے ملنا، گوشت کھانا اور ماشاءاللہ خوشیوں میں شامل کرنا۔ عید جو ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہے اور مل بانٹنے کا تہوار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عید کے موقع پر تمام دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ خوشیوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی جنید انور، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ لودھرا میں جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا سلسلہ جاری، اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی عملہ صفائی کے ساتھ فیلڈ میں موجود، مزید جانتے ہیں آصف حنیف سے۔ بالکل، لودھرا شہر اور دیہی علاقے یعنی تحصیل لودھرا کے علاقوں میں علائشوں کو اٹھانے کے لیے، جانوروں کے جو باقیات ہیں، علائشیں ہیں، ان سے گلی دیہاتوں کو صاف کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر لودھرا محترمہ ارم شہزادی اس وقت شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کا وزٹ بھی کر رہی ہیں۔ ابھی گیلے وال سے واپس آئی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صفائی کا حالات کیا ہیں۔ میم، علائشیں اٹھا رہے ہیں، عملہ صفائی آپ نگرانی کر رہی ہیں، شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں مصروف ہیں، کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ صفائی کا پروگرام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشنز پر اور ڈی سی صاحبہ کے زیر نگرانی آج عید کا دوسرا روز ہے، اور عید کے دوسرے روز میں بھی ہماری کڑی نگرانی جاری ہے، جس میں ہماری سترہ پنجاب کی ٹیمز موجود ہیں اور ہم خود بھی فیلڈ میں متحرک ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے اپنی فل پروف کوشش کی ہے کہ ہم انتظامات ہمارے فل پروف ہوں۔ ہم نے ویسٹ پیکس ٹائم سے پہلے سب کو پہنچا دیے تھے اور شہریوں سے بھی گزارش کی تھی، جس میں انہوں نے بہت حد تک ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا۔ جہاں جہاں کمپلینٹس ریسیو ہو رہی ہیں وہاں پر میں خود بھی فیلڈ میں جا رہی ہوں اور میرے ساتھ میرا سارا سینیٹری سٹاف بھی جا رہا ہے اور ہم کمپلینٹس کو ریزالو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اپنے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، 6 ہمارے پاس اربن کیمپس تھے اور اسی طرح رورل ایریاز میں بھی ہمارے پاس ہر یو سی میں 27 یو سیز ہیں، تو 27 کیمپس ہم نے بنائے تھے۔
जहां हम लोग वेस्ट डोर टू डोर कलेक्ट भी कर रहे थे और उसके बाद डंपिंग पॉइंट से लेके फिर हम लोग डंपिंग साइट के ऊपर हमारा पॉइंट जा रहा था कि हमारा ना सिर्फ जो कचरा है वो घरों से इकट्ठा हो बल्कि वो प्रॉपर जगह पर डिस्पोजल उसका भी हो। तो हमने डंपिंग साइट पे भी मेक श्योर करवाया है कि हमारा थ्रू आउट जो है वो हमारा कचरा जो है वो डंपिंग साइट पे जाए और हमारा शहर जो है वो साफ सुथरा हो। जी बिल्कुल, आपने जाना कि तफसीलन आगाह किया। मोहतरमा एरन शहजादी का कहना है कि शायद सिर्फ आलाइशों को उठाना ही मकसद नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से सरकारी SOPs के जरिए तलब करना, उनके वाक़यात को उठा लेना और शहरों को साफ सुथरा रखकर शहरात को धोना उनका मकसद है, जिस पर काम जारी है। आसिफ हनीफ, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब कामयाबी की तरफ गामजन विफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज का रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यार ये बहुत अच्छा काम हुआ है, पिछली ईद पे भी था, इलाकों में सफाई सुथराई भी है, मसाजिद के बाहर चूने भी लगे हुए हैं और एक अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत आला टीम है कबीर वाला के अंदर, मैं बड़ा मुतमईन हूँ इससे, लोगों को रोजगार मिला और ऐसी बात यह है कि मकामी बंदा अपने ही घर में अपनी ही सफाई कर रहा है और हुकूमत उसको सब्सिडाइज कर रही है, उसको पे कर। बहावलनगर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से दस्तरखान का अहतमाम। कमर्शियल कॉलेज चौक में बड़ा दस्तरखान की तकरीब सजाई की। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम अरशद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। का दिन जो है वो ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा का दिन है। आज का दिन हमें कुर्बानी का दर्स देता है, हमें भाईचारे का दर्स देता है, मोहब्बत का और मिलनसारी का दर्स देता है, तो और आपस की जो रंजिशें भुलाने का दर्स देता है। उसमें इस वक्त हम दस्तरखान में मौजूद हैं जो इधर कमर्शियल चौक बहावलनगर में उसको इंतज़ाम किया गया है मुखय्यर आज़ाद की तरफ से। उसमें एस्टैब्लिशमेंट में मेरे साथ मौजूद है और इसमें यह है कि मुस्तहिक़ अफराद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो साल और रूटीन में इधर से खाना उन्हें दस्तयाब होता है। आज स्पेशल इनके लिए बिरयानी तैयार की गई है और कौरमा तैयार किया गया है और इनको अपनी जो खुशियों में जो मेरे ख्याल में इनको शामिल किया गया है, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, ये सबसे बड़ा दर्स है कि अपना वो जो भाईचारे का जज्बा है वो आज हमें यहाँ पे देखने को। आपको बताएं कि वन व्हीलिंग करने वाले हो जाएं होशियार। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा तंग कर लिया है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, ईद पर शाम में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और उसको किस तरह से उसके लिए मुनज़्ज़म और मौसर प्लान दिया गया है कि जो मार्केट्स हैं या जो सड़कें हैं उन पर रश को कम किया जा सके और हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के क्या क्या इंतजामात हैं और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस कज़ाफ़ी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। और सेकंड बात यह है इसके लिए क्योंकि कोई पहला मरहला नहीं है, ये कोई पहली ईद नहीं है, हमारा एक प्रॉपर एक प्लान होता है। उसके लिए तमाम डिस्ट्रीब्यूट की हुई है नफरी, हमने तमाम जितने फ्लाईओवर्स है वहाँ पे डिप्यूट किए हुए हैं लोग। इसके अलावा टीमें तश्कील दी गई हैं जो वन व्हीलिंग को जो है ना रोकती हैं। इसके अलावा हम जो है स्पेशली टारगेट कर रहे हैं जो कम उम्र बच्चे हैं, वो आते हैं रोड पर और एक्सीडेंट्स के बाइस जो है ना खुदा ना खास्ता किसी बड़े साने का बाइस बनते हैं। और ऐसी कंडीशन भी हो जाती है मोस्टली जो हमारी रिसेंट बहुत सारी जो है ईदें गुजरी हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां एक बेहतरीन सा समा होता है, एक खुशी का त्यौहार होता है और वहां पे जो है ना एक शोक का त्यौहार हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाती है, कोई इस तरह से मामलात होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, टीम्स हैं तश्कील दी हैं रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना। रात को भी हमारे मौजूद थे, अभी डे में भी हमारे मौजूद हैं और आज रात को भी होंगे, क्योंकि ये जो होता है मोस्टली जो है ना वो प्लान करके चलते हैं कि आज के दिन हम लोगों ने फलां जगह पे जाना है, फलां जगह पे जाना है। इस तरह से वो भी थोड़ा सा एक मुनज़्ज़म अंदाज से जो है अपनी तरतीब को बदलते रहते हैं। तो हम उसको जो है ना हमारे पास एक रिसोर्सेज के तौर पे, जिससे जासूसी तौर पे हम लोग उसको टारगेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, फिर उनके हिसाब से जो है ना वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको पकड़ते हैं, पकड़ के जो है ना वो FIRs वगैरह चाक करते हैं। अगर कोई इस तरह के वन व्हीलिंग करेगा या कोई अगर रेसिंग वाली साइड पर जाने की कोशिश करेगा तो सिटी ट्रैफिक। ईद कुर्बान का दूसरा रोज एंटरटेनमेंट के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सिनेमा घरों में पहुंच गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो ईद कुर्बान के दूसरे रोज अपने काम काज से फरागत पाने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सिनेमा घरों में जो है वो मौजूद है, जिसमें खसूसी तौर पर बात करते चलें तो बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है। बेटा, कौन सी मूवी देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर कैसी इंटरटेनमेंट करेंगे, किसके साथ आए हैं, कैसा लग रहा है, ईद का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजरा है।
अच्छा गुजर रहा है, तो कौन सी फिल्म जो है वो देखनी, पाकिस्तानी फिल्म देखना आएंगे? जी। तो आप ये बताओ, पाकिस्तानी जो अदाकार हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा अदाकार आपको अच्छा लगता है? शान अच्छा लगता है? शान भी अच्छा लगता है। ये बताओ, आज आपने मैचिंग के कपड़े पहने हैं, मैचिंग की ज्वेलरी पहनी है, कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजर रही है? सिर्फ यहीं पे ही आई हो या आइसक्रीम वगैरह भी खानी है और भी कहीं पार्क शार्क में भी जाना है? नहीं। आइसक्रीम खाने जाओगे? जी। आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। अभी तो यहाँ पर हैं और भी शहरी हमारे साथ हैं। भाईजान ये बताएं कि ईद का दूसरा रोज है, बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारना कितना जरूरी होता है, और जब एंटरटेनमेंट की बात हो तो कैसा लगता है यहाँ पर बच्चों के साथ आना? ये एंटरटेनमेंट, ये मसूद आरा भट्ट साहब अच्छी एंटरटेनमेंट देते हैं और साफ सुथरी म्यारी फिल्में लगाते हैं। अब ये लव गुरु लगी है, काफ़ी मतलब कि फैमिली बहुत आ रही है इस फिल्म पे। फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है और गाने भी अच्छे हैं, लिहाजा ये भट्ट साहब का सनम है जो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। आगे आप अपनी फैमिली के हमरा जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो बच्चों की फीलिंग कैसी होती है, महसूसात कैसी होती हैं, और फैमिली जब यहाँ पर आती है तो क्या कहना है उनका, कैसी एंटरटेनमेंट मिलती है? फैमिली और बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं ना कि हम बाहर आए हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखते हैं। होते हैं, मैं दिखा सकूं तो इस वक्त भी यहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो सिनेमा घरों के अंदर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर पहुंच रही हैं, और सब जो है वो अपनी मनपसंद मूवीज जो हैं वो देखने के लिए यहाँ पर सिनेमा हॉल की तरफ गामजन है। और उनका ये कहना है कि ईद का पहला रोज तो कुर्बानी करने और गोश्त बांटने में गुजरा, जबकि दूसरा रोज अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा इन्होंने ईद को जो है वो यादगार बनाना है, ईद का मजा दोबारा करना है। तो इसमें फिल्म जो है और इंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने सिनेमा घरों का रुख किया। एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया। ईद का दूसरा रोज सियासी डेरे मुकम्मल आबाद, गपशप और तवाज़ो का सिलसिला भी जारी। लीगी टिकट होल्डर सैयद बाबर शाह कहते हैं, ईद हल्के के अवाम के साथ ईद मनाने में मज़ा आता है। सैयद बाबर शाह का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद कहना था कि ईद खुशियों का त्यौहार है। ईद पर मुसर्रत मौके पर इस मौके पर गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त गरीब और नादर अफराद तक पहुँचाएं। ईद पर इख्तिलाफात को ख़त्म करें और मिलकर बैठें।